Wish you all a Merry Christmas as this day once again we meet. We already had an early Christmas service. This is our second Christmas service this morning. And we praise God. प्रभु का धन्यवाद देते हैं बड़े दिन के लिए। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो, सारे परिवार को मेरी क्रिसमस। अपने परिवार की ओर से सबको बधाई देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारा शांति का राजकुमार परमेश्वर की ज्योति हमारे बीच में है। यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्मा है। God, our Lord Jesus Christ, is born in our hearts. The Prince of Peace is in the world. The Bible tells us, "Behold, I bring you good news of great joy, which will come to all the people. For to you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord." और मैं तुम्हें एक सुसमाचार देता हूँ, एक अच्छी खुशखबरी देता हूँ, आनंद आए। सारे जगत में लोगों को आनंद मिले। किस चीज़ का आनंद? ताकि हमारे बीच में जन्मा है दाऊद के घराने से एक हमारा मुक्तिदाता, जो कि मसीह परमेश्वर है। सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में है। Lord is here with us and the Lord bless us. प्रभु हमको आशीष दे। जब आप बड़े दिन की इबादत में शरीक होते हैं, हमारे गीतों में, और जो भी प्रार्थनाएं आज करें, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि वो पूरी हों। Pray that Lord would make those prayers come true in your life as you pray today and worship together. Let's look to the Lord in prayer. Almighty God, who sent your only Son into the world to take our nature upon him and to be born of a pure virgin, grant that we who by his grace have been born again and made your children may daily be renewed in his likeness by your Holy Spirit. Through him who lives and reigns with you and the same Spirit, one God, now and ever. Amen. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि हमारा स्वभाव धारण करे और पवित्र कुंवारी से जन्म ले। वर दीजिए कि हम, जिन्होंने उसकी कृपा से नया जन्म पाया और आपकी संतान बनाए गए,
आपके पवित्र आत्मा के दिन प्रतिदिन आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु की समानता में नए बनते जाएं, उसी के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। The responsive reading this morning has been taken from the book of Psalms, chapter 86, verses 8 to 13. Please respond by saying, "To us a child is born, a son is given. There is none like you among the gods, O Lord, nor are there any works like yours. All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. For you are great and do wondrous things. You alone are God. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever. For great is your steadfast love towards me. You have delivered my soul from the nethermost pit." Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. There dwelt in old Judea a maiden fair to see, the mother might and undefined, oh blessed babe was she. Sing Noel, and merry be always, for Christ was born in the early morn, all on a Christmas day. And as the infant Jesus lay on his lowly bed, a circle bright of heavenly light shone round about his head. Sing Noel, and merry be always, for Christ was born in the early morn, all on a Christmas day. The shepherds bowed before him, while angels lifted fly, on blessing born with songs of joy to fill the starry sky. Sing Noel, and merry be always, for Christ was born in the early morn, all on a Christmas day. The first Bible reading is taken from Isaiah chapter 9 from verse 2 and 3 and then verses 6 and 7. Isaiah chapter 9 verse, "The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone. You have multiplied the nation, you have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil." Verse 6 and 7. "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end, on the throne of David and over his kingdom,
to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. This is the word of God. सबको जय मसीह की। मैं पढ़ूंगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 2री और 3री आयत, तदोपरांत 6ठी और 7वीं आयत। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। 6ठी आयत से, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। The second Bible reading is taken from the book of Hebrews, chapter 1, verses 1 to 12. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So, He became as much superior to the angels as the name He has inherited is superior to theirs. For which of the angels did God ever say, "You are my Son, today I have become your Father"? Or again, "I will be his Father, and he will be my Son"? Or again, when God brings His firstborn into the world, He says, "Let all God's angels worship Him." In speaking of the angels, He says, "He makes His angels spirits and His servants flames of fire." But about the Son, He says, "Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy." He also says, "In the beginning, Lord, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will remain. They will all wear out like garment. You will roll them up like a robe. Like a garment they will be changed, but you remain the same, and your years will never end." Here ends the reading. Thanks be to God. मैं पढ़ूंगा इब्रानियों के नाम पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके पहले पद से 12वें पद तक। इसमें लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिस उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ? और फिर यह है कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा।
तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे। और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। गुनहगारों को दे दे सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को दे दे सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम की आंखों का तारा, आया चरनी में राज दुलारा। गुनहगारों को दे दे सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब निराली। आया दुनिया में यीशु जलाली, ये शुभ संदेश आया। गुनहगारों को दे दे सहारा, आया चरनी में तारनहारा। हम भी आकर नजर चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। हम भी आकर नजर चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। भूखे प्यासों का वही सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को दे दे सहारा, आया चरनी में तारनहारा। ओह प्यारी रात, ओह न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओह शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओह प्यारी रात, ओह न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओह शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओह बैतलहम में आज यीशु का जन्म हुआ, हम करें शांति दूत के लिए दुआ। बखान कर रहे हैं दूत स्वर्ग के, ना आएगी दोबारा ऐसी रात। ओह बैतलहम में आज यीशु का जन्म हुआ, हम करें शांति दूत के लिए दुआ। बखान कर रहे हैं दूत स्वर्ग के, ना आएगी दोबारा ऐसी रात। ओ न्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओह जो सितारा आसमान में चमक रहा, वो प्रभु की दिव्य ज्योति से दमक उठा। वही तो है जिसको ढूंढते थे हम, ना आएगी दोबारा ऐसी रात। ओह जो सितारा आसमान में चमक रहा, वो प्रभु की दिव्य ज्योति से दमक उठा। वही तो है
जिसको ढूंढते थे हम, ना आएगी दोबारा ऐसी रात। ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओ हर तरफ खुशी के राग गूंजने लगे, बालक यीशु को जमीन पे पूजने लगे। मिटे हमारे दुख, सुख मिला हमें, ना आएगी दोबारा ऐसी रात। ओ हर तरफ खुशी के राग गूंजने लगे, बालक यीशु को जमीन पे पूजने लगे। मिटे हमारे दुख, सुख मिला हमें, ना आएगी दोबारा ऐसी रात। ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। The Gospel reading has been taken from the Gospel according to John, chapter 1, verses 1 to 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. In our intercession at this time of Christmas, we like to all join with all the human family together and pray to Lord Jesus Christ unceasingly. Especially we pray for COVID-19, the harm that has come to the human community, families, how they have lost their dear ones. People are lonely, sad at this time. We want to remember at this time those who have lost their very dear one. हम अपनी सिफारिशी दुआ में सब इंसानों के लिए दुआ करें, मसीह यीशु मसीह की दायनी सिफारिश के साथ पेश करें, खास तौर से जिनके अजीज जिनसे जुदा हो गए हैं कोविड की वजह से, उदास हैं, दुखी हैं। हम दुआ करें कि खुदा उनके घर में भी शांति और अमन बनाए रखे इस समय। Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayer. उन सब के लिए जो शहर में बसते हैं, उन तमाम बातों के दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे देश में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। For all engaged in agriculture, industry, commerce, for all workers skilled and unskilled, and for all those who defend our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों,
लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो एक दूसरे के दिलों दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। For those who are suffering, the poor, the hungry, the destitute and oppressed, the unemployed, the sick and the dying, especially during time of pandemic, those families who lost their dear ones, especially all those who lost their jobs also, and those who are suffering at this time because of sickness, and all those who help them. Lord, in your mercy, hear our prayer. उन सब के लिए जिन्होंने इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया, खासकर हमारे राष्ट्रपति, इस सुबह के लेफ्टिनेंट गवर्नर, इस स्टेट के दिल्ली के मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। For the unity of all Christian people and for their witness and service in the world, we pray for celebration of Christmas at such a time where there is a turmoil, pain, suffering. We pray that the joy and hope of the birth of our Lord Jesus Christ will encourage them to look upon to you and be blessed. Lord, in your mercy, hear our prayer. इस मुल्क के तेरे तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिल और रहनुमाओं के लिए, खासकर पीसी सिंह जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर हैं, सीएसआई चर्च के बिशप और हमारे दिल्ली डायसिस के बिशप वारिस और तमाम दीगर खादिमों के लिए खासकर इस समय दुआ करना चाहते हैं। रेवरेंड डेनिस लाल के लिए खुदावन आप उन्हें छुएं और उन्हें चंगाई दें कोविड से, और रेवरेंड शर्ली लाल उनकी पत्नी के लिए खुदावन उन्हें छुएं और उन्हें चंगाई दें। अनुराग स्मिथ के लिए दुआ करते हैं, आशीष सैमुअल के लिए दुआ करते हैं, पादरी जय कुमार जो कोविड से ठीक हो गए हैं पर अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ करते हैं जो हमारे साथ एसोसिएट हैं। आप उन्हें भी छुएं, उन्हें चंगाई दें ताकि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। That with all your people who have faithfully served you in this life, you also may share the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us say together, hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions which we offer in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thy
आए अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। और दूसरा ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandments, and to live in love and peace with all people. आइए अपने पापों के अंगीकार की दुआ एक साथ बोलें। आए तमाम कुदरत के खुदा हमारे आसमानी बाप, तूने ख्याल, कौल और फैल से हमने गुनाह किया है, तेरा अपने साथ के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम नहायत ही गमगीन और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ फरमा और ये बख्श कि हम आगे नई जिंदगी में तेरी खिदमत बजा लाएं और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। Almighty God, who forgives all who forgive one another and truly repent of their sins, have mercy on us, harden and deliver us from all our sins. Confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. As this is the prayer of confession we have done and repented for our sins, इस समय अपने गुनाहों का इकरार किया है। और जब गुनाहों का इकरार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो खुदावंद अपना इत्मीनान हमें देना चाहता है और वो इत्मीनान एक दूसरे में बनाए रखें। As we repented and confessed, the Lord desires that we also have this peace with Lord Jesus Christ and with each other. So let us share the peace of the Lord. We are the body of Christ. In the one Spirit we were all baptized into one body. Let us pursue all the ways for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always be with you. चरनी में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गडर ये
जहन के मैदानों में गगन ये रात सो रहे थे, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ कृष्ण निदान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ कृष्ण निदान, आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर, आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर, चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर, चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर, आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान, है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान, आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। Merry Christmas to all of you. परमेश्वर आपको बरकत दे जब आप इस बड़े दिन की इबादत में शरीक हुए हैं। Today the Lord is reminding us of very important things in our life. We have been blessed actually. So much blessed that we can hear the word, we can sing praises. Remember that we have on 23rd the caroling, such a wonderful carols and Bible readings in different languages and singing carols in different languages. God bless you. And the feedback जो मुझे मिला है और लोगों ने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है. God bless you. I hope and pray that you will have a blessed Christmas today. और आप सब लोगों को खुदावंद बहुत बरकत दे. आज के मैसेज में दो खास बातें हैं जो समझने की हैं और जो खुदावंद चाहता है कि आप जाने कि जब ज़करिया जो था उसको जब मैसेज मिला, ज़करिया was given a message in Luke chapter 1 1:13 के अंदर मैसेज दिया और उसने ज़करिया को मैसेज दिया कि तेरी बीवी को पुत्र होगा और उसका नाम तू जॉन रखना. So you will bear a son to your wife Elizabeth and you will call him John. और जोसेफ को मैसेज मिला, यूसुफ को भी मैसेज मिला, and there Joseph was told that thou son of David fear not unto thee Mary your wife, for which she will conceive her in the Holy Ghost, and she shall bring forth a son, and shall call his name Jesus. In Matthew chapter 1 verse 20 and 21 it says. So we see Zechariah getting a message, also Joseph getting a message. But one thing today the scripture reminds us that both these men, these husbands got the message were the same. दोनों के जो कार्य था, जो सुसमाचार मिला, बिल्कुल ठीक मिला. जकरिया को बोला
जॉन के लिए, जोसेफ को बोला, यीशु के लिए. But the very distinctiveness is that Jesus, when he was born in history, the whole history changed. पूरे इतिहास में बदलाव आ गया. जॉन जो पैदा हुआ था उसके पिता और उसकी माता से हुआ. यीशु मसीह पैदा हुए, माता जब गर्भवती हुई, पर पिता का उसमें कोई भाग नहीं था. वो सिर्फ पवित्र आत्मा से था. It was only by Holy Spirit. So angel came and gave a good news, and whole entire world will be saved, and they will be blessed by the name of the Lord Jesus Christ. And that's what it reminds us कि खुदावन ने अपना उद्धार अन्य जातियों के लिए और यहूदियों के लिए था, ताकि वो लोग बचाए जाए. आज का जो मैसेज है कि खुदावन यीशु मसीह हमारे बीच में जन्मा है, that we are being given salvation through Jesus Christ. खुदावन यीशु मसीह में उद्धार जो दिया है वो यीशु मसीह के जरिए आया है, और हमें पश्चाताप वाला मन रखना चाहिए, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो. परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं. और आज का जो मैसेज है जो हमारे बीच में आया है, हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि आज का मैसेज जो है हमारे बीच में हमारे बिशप साहब, बिशप पारिस के मसीह बीच में लिखा है, जो हमारे दिल्ली डायसिस के बिशप हैं. ही इज द बिशप ऑफ दिल्ली डायसिस. He would like to bring to us the Christmas message to the church and to the diocese today. May God bless us as we hear this message that will bring joy of Christmas into hearts and lives of people. आज क्रिसमस के इस पर्व दिवस पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस साल हम सबको अपनी सुरक्षा में रखा है और फिर से यह दिन हमारे जीवन में दिया है. तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें. उसके प्यारे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए जो सारे संसार का उद्धारकर्ता बनकर आया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ग्रीट ईच वन ऑफ यू and thank God for sending His Son into this world to save all of us. And during all this, throughout the year, we passed through a critical time because of COVID-19. But still we are thankful, God, that we are here to worship Him and thank Him for His Son, our Lord Jesus Christ, the Savior of the whole world. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज जब आप सबसे जो डायसिस ऑफ दिल्ली के मंडलियां हैं और आज क्रिसमस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करते संसार में आए थे, तो ये जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो सब कुछ देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, कैसे पहले से कहा गया था और कैसे वो सब बातें जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी वो पूरी होती हैं. तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हैं, हमारे दिलों में खुशी है, आनंदित हैं हम लोग, और इस खुशी के मौके पर इस खुशी को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं. वी आर विशिंग ईच अदर दिस स्पेशल डे क्रिसमस, कि आज का दिन सारे संसार के लिए एक विशेष दिन है कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है. मेरे प्रियजनों, मैं आज सिर्फ आप लोगों को बड़े दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस जो प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का है उसका हमारे लिए क्या उद्देश्य है. कि जब हम इस दिन को याद करते हैं, when we are celebrating this Christmas, so what it is all about. क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ रिजॉइसिंग. क्रिसमस का जो वक्त है
ये समय है, ये दिन जो है हमारे लिए आनंद मनाने का है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले ये आनंद की बातें कही गई थीं। जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये क्रिसमस का वो टाइम है कि जब हम परमेश्वर के उस आनंद को, उस खुशी को हासिल करते हैं जो हमारे दिलों में है। यानी कह सकते हैं कि द मैसेज ऑफ क्रिसमस इज अ मैसेज ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। क्रिसमस मैसेजेस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, और उसको जब हम जाहिर करेंगे या जाहिर कर रहे हैं, आप जानते हैं कि हम करीब कई दिनों से चर्चेस, मसीही मंडलियाँ एक दूसरे के घरों में जाकर, चर्चेस के अपने सदस्यों के घरों में जाकर कैरल सिंगिंग करते हैं। चर्चेस में अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। संडे स्कूल के बच्चे प्ले करते हैं, यूथ के एक्टिविटी होती हैं, WFCs की होती हैं, और कलीसिया मिलकर इस दिन को याद करते हैं। तो ये हमारी खुशी को जाहिर करने का एक तरीका है, उस आनंद को लेने का जो प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने का था। तो जब हम इस बात को याद करते कि ये खुशी का दिन है, तो इसके साथ हमें ये भी याद रखने की बात है कि लेट अस ऑल्सो रिमेंबर व्हाट इट रिमाइंड्स अस। द मैसेज ऑफ क्रिसमस इज ऑल्सो अ मैसेज ऑफ शेयरिंग। क्रिसमस इज अ टाइम ऑफ शेयरिंग। ये वो वक्त है कि जब हम अपने प्रियजनों के साथ खास करके हम वो खुशी को बांटते हैं। In St. John's Gospel, chapter 3, verse 16, which is a golden verse, key verse of the Bible, which reminds us that God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes should not perish but have eternal life. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। गॉड शेयर्ड हिज सन विद द वर्ल्ड। उसने अपने प्यारे बेटे को संसार के साथ शेयर कर दिया। तो उसके आने का मकसद जो था कि उसका प्रेम उससे द्वारा जाहिर हो, कि गॉड सेंट हिज सन इनटू दिस वर्ल्ड टू रिडीम ऑल ऑफ अस बिकॉज वी ऑल आर सिनर्स। हम सब पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह हम पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए थे। तो जब हम ये कहते हैं कि ये टाइम है, ये समय है, ये हमारे लिए खास खुशी के दिन है, तो क्या क्या बांट सकते हैं? कि बाइबल में हमने देखा कि ज्योतिषी अपने जो बहुत ही कीमती उनके पास था, दे ऑफर्ड जीसस। शेपर्ड जो थे, गरड़िए जो थे, वो जो उनके पास था वो लेकर आए। तो इस दिन पर आज हम मसीही होने के नाते, हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हम जिन्होंने इस बात को जाना है कि परमेश्वर का प्रेम उसमें प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, तो आज हम क्या शेयर करने लगे हैं? हम व्हाट वी आर गोइंग टू शेयर विद पीपल। कि आज हम जब चारों तरफ देखते हैं, बहुत सारे लोग ज़रूरतमंद हैं, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इन दिनों में वी बिकम सो काइंड। हम अपने प्यार को जाहिर करते हैं, बट वाई नॉट द होल ईयर? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ अपना जीवन दे दिया। उसने अपने आप को हमारे लिए सलीब पर बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने अपने प्यारे बेटे को संसार में भेज दिया। और ये ज़रूरी है कि मेरे प्रियजनों,
जब मैं शेयरिंग की बात करता हूँ, बांटने की बात करता हूँ कि मिलकर हम शेयर करें वॉट एवर वी हैव, क्रिसमस हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के प्यार को बांटें। यानी शेयरिंग शुड हर्ट, कि जब हम कुछ देते हैं, जब हम शेयर करते हैं, वो हमें हर्ट भी करता है, क्योंकि हम अपने जो कुछ हमारे पास है उसको हाथों से देना किसी को खुशी तो देता, पर साथ ही साथ हमें हर्ट भी करता है। इट हर्ट गॉड टू गिव हिज ओनली बिगॉटन सन, हिज बिलवड सन। ये परमेश्वर को भी उसको हर्ट किया कि उसने अपना प्यारा बेटा संसार के लिए दे दिया। इट हर्ट जीसस टू सफर एंड डाई। प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को दुख सहना पड़ा और सलीब पर अपने आप को बलिदान करना पड़ा। हाउ मच डज इट हर्ट अस टू शेयर आवर लव विद अदर्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आज जब हम बड़ा दिन मना रहे हैं, हमारे दिलों में खुशी है, हम आनंद महसूस कर रहे हैं, शायद हमने अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया होगा, पर क्या उस आनंद को, उस खुशी को, उन रिसोर्सेज को, उन ब्लेसिंग्स को जो खुदा ने हमें दी हैं, आज हम लोगों के साथ जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, वो इसको शेयर कर रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्यारे बेटे को शेयर करा, क्योंकि उसको पता था कि हमें उसकी ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, क्योंकि उसको पता था कि उसके बेशकीमत लहू के द्वारा हमारा उद्धार होगा और उसकी हमें ज़रूरत है। और आखिरी बात जो मैं आज इस मौके पर अपने सभी मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस जो है इट्स अ टाइम ऑफ रिमेंबरिंग। ये यादगारी का समय है। क्रिसमस जो हमारे बाइबल के अनुसार हम सब बातों को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या कहा गया था, क्या क्या नबूवतें हुई थी, भविष्यवाणियाँ हुई थी, प्रोफेसिस हुई थी, और कैसे वो फुलफिल हुई हैं, कैसे वो पूरी हुई हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में। तो आज जब मैं कहता हूँ कि ये टाइम है कि हम रिमेंबर करें, लेट अस रिमेंबर दैट व्हाट क्रिसमस इज़, एंड क्रिसमस इज़ अ टाइम ऑफ रिमेंबरिंग। और जब हम इस बात को कहते हैं, जब मैं रिमेंबर करें क्रिसमस के मैसेज को कि वाई जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड, वाई गॉड सेंट हिज सन इनटू दिस वर्ल्ड, कि जब परमेश्वर ने संसार में अपने प्यारे बेटे को भेजा है, तो उस बेटे के बारे में, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें क्या याद करना है। और प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं जॉन 10:10, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां बाब और 10वीं आयत में, कि वो आया, इसलिए आया कि वो अब्दी जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं। आई केम, जीसस सेड दैट आई केम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट abundantly. Jesus himself said that I have come that they may have life and have it abundantly, कि मैं आया हूँ और वो अनंत जीवन प्राप्त करें। और वही जीवन जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रियजनों, ये वक्त है कि जब पूरी दुनिया, संसार एक बहुत भयानक वक्त में से गुजर रही है। ऐसा समय है कि जब सब डरे हुए हैं। ये कोविड-19 के कारण फिर से कई जगहों पर, कई कंट्रीज़ में लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है, जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ना जाने क्या होगा। और मुझे याद है कि जब
मार्च में लॉकडाउन इंडिया में लगा था, तो हम सब ने 2 क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 14 जो है उसको याद कर रहे थे कि परमेश्वर कहता कि अगर मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र हों, दीन हों और मुझसे प्रार्थना करें तो मैं इनके प्रार्थना को सुनूंगा और इनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और शायद अभी भी हमने परमेश्वर के आने के मकसद को, उसके दिन को याद नहीं किया कि वाई ही हैज़ कम इनटू दिस वर्ल्ड। ही केम टू गिव अस अ लाइफ अबंडेंट, लाइफ फुल लाइफ, कि हम खुशी के साथ इस संसार में रहें और हम आनंदित रहें। ही केम टू ट्रांसफॉर्म दिस लाइफ सो दैट वी मे बिकम a new creation. That is the purpose of Jesus coming to this world. To remember, He came to transform our lives and to make us a new creation. As the Word of God says, those who are in Christ, they are new creation. जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। Are we in Christ? That is a big question before all of us. हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह में हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों को ट्रांसफॉर्म करा है? इनमें बदलाव आया है कि नहीं? फिर प्रभु यीशु मसीह के आने का जो पर्पस है कि He came to give us peace, शांति देने के लिए। आप देखते हैं चारों तरफ कितना अशांति है, पर हमने उसके ऊपर अगर विश्वास किया हो तो हम उस शांति को अवश्य प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पीस आई लिव विद यू, माई पीस आई लिव विद यू एंड माई पीस आई गिव टू यू। मैं तुम्हें शांति देता हूँ और मेरी शांति हमेशा के लिए है, वैसी नहीं जैसा संसार तुम्हें देता है। जॉन 14 वर्स 26 onwards. He offered a life free from troubles, uncertainties, violence, wars and unhealthy relations. प्रभु यीशु मसीह ने को याद करने का जो अवसर है, उसके आने का मकसद है कि वो हमें शांति देने के लिए आया है, सब मुश्किलों से छुटकारा देने के लिए आया है। अनसर्टेनिटी जिसकी कोई पता नहीं क्या होगा, ये जो वायलेंस हो रही है, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं देश देश के ऊपर, देशों में आपस में, तो उनसे शांति देने के लिए उसके आने का मकसद था। और आखिरी बात जो प्रभु यीशु मसीह के आने के मकसद के बारे में है कि जब आज हम बड़े दिन को मनाते हैं, क्रिसमस को याद करते, 2020 साल पहले जो एक छोटा बालक बनकर जिसने जन्म लिया था संसार में, उसके दिन को याद करते हैं, तो आखिरी बात जो है कि हम प्रभु यीशु मसीह से सीखें, याद करें कि उसके आने का क्या मकसद था। What was his purpose? What this Christmas is for me and what this Christmas is for you. It is a time of remembering, कि हम याद करें। और जो सबसे मेरे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप, मैं और आप थोड़ी से बैठकर सोच विचार करें, मेडिटेट करें, तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, द मैन सन ऑफ मैन हैज़ कम नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व। कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूँ ना कि सेवा करवाऊँ बल्कि सेवा करूँ। ही केम टू सर्व। और आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो 3 मिनिस्ट्रीज थी जिसको वो हमें याद दिलाते हैं, टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग, और चर्च, मसीही कलीसियाएँ, इन्हीं तीनों मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं।
कि हम प्रभु यीशु मसीह के जो सेवा थी, जिसको उन्होंने एक एग्जाम्पल हमारे लिए बनाया था कि उन्होंने जो कुछ कहा उसको फॉलो किया। उन्होंने हमें सिखाया था कि वो सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया है। क्या आज मैं और आप इसके लिए सोच सकते हैं? मैं अगर अच्छी पोजीशन लेता हूँ कि हम सोचते हैं नहीं, somebody should serve us, हमें कोई सर्व करे तब हम कहेंगे कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो गुरु होकर अपने शिष्यों के पांव धोए थे। आप जानते हैं मॉन्डी थर्सडे वाले दिन आखिरी फसह से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए थे। उन्होंने कहा मैंने ये तुम्हें नमूना सिखाया है कि अगर मैं तुम्हारा गुरु होकर तुम्हारे पैर धो सकता हूँ तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। इससे ह्यूमिलिटी, नम्रता, हलीमी कि हम में क्या वो है कि नहीं है। कल मैं बात कर रहा था कहीं पर कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के खुद के वचनों को याद करते हैं, लूका 6 बाब में, तो वहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जैसा तुम चाहते कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने इस अर्थली लाइफ में रहते हुए कही थी, जिनको सेंट पॉल भी रोमियो की पत्री में लिखता है। वो इस बात को याद रखता कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था और मैंने उसको अपने जीवन में दर्शाना है। वो भी हमें कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनका भला चाहो। अगर तेरा बैरी तुझसे पानी मांगता तो उसे पानी पिला। तो कितनी अच्छी बातें, आज तो हम वो नहीं करते। तो जब आज हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते मेरे अजीज़ों, तो आइए हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के पर्पस को ना भूलें। इस क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने रखें। हम इस क्रिसमस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें कि उसने अपने जीवन में क्या क्या किया था और क्या क्या करने के लिए कहा। तो मैं आज आप सबको बड़े दिन की क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ, पूरे परिवार की, अपने परिवार की तरफ से, पूरे डायसिसन फैमिली की तरफ से, और खुदा से ये दुआ करता हूँ, आई प्रे टू गॉड दैट दिस क्रिसमस बी अ डिफरेंट क्रिसमस when we are passing through this COVID-19. Many of our dear ones have gone to family abode. Many are suffering. Many are in the hospitals. Let us pray for them. Let us pray for their healing, that God touch them and heal them, that they may also be thankful to God that God has saved them, God has healed them, and they are there and God has a purpose in their lives. परमेश्वर का कोई ना कोई मकसद है जो उनके जीवनों में है वो पूरा हो सके. God bless each one of us, and once again I pray that God's blessings be upon each one of us, on our families, in our surroundings, so that we celebrate this Christmas in a different manner, in different way, that how much we love people. परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस प्यार को उनके साथ बांटो जिनसे तुम्हें कुछ लेने की उम्मीद नहीं है, ताकि हम लाइफ्स को भी जी सकें. गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस. और ये साल जब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, नया साल हमारे जीवन में आएगा, तो हम उसके लिए भी शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं कि गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस एंड a new year may be a blessed one for us. God bless each one of us. Amen. Let us all affirm our faith and say together, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth,
we believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again, in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism of the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. May the light of Christ, the Son of righteousness, shine upon you and scatter the darkness from before your path. And may the Christ, the Son of God, gladden your heart with good news of his kingdom. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among us and remain with us now and ever. Amen. Amen.